Hello. Previously, we have seen it in Excel about how to insert row, how to delete cell, what is range of cell. So a number of things I have explained it. Now I am explaining right now alignment. Alignment play a very important role. Just see it how to uh, align it. So this is the part which you can align it. यही एक वो part है जिस पे आप align कर सकते हो. Again, it is a very important factor. This is called text alignment. There are three text alignment: left, center, and right. And there are three cell alignment: top, bottom, top, center, and bottom. Remember this thing: text alignment left, center, right; cell alignment top, bottom, top, center, and bottom. है ना? Okay. Now align it. So I'm just marking it: number, serial number, name, marks, serial number 1, 2, 3, 4, Raj, Geeta, Sita, Meet, and marks 45, 54, 34, 98, 9. Now the thing is, first, always whenever you are using Excel, always use border. Border is an area which you can apply it all the cell. So this is the border, and this you can apply it. This is the border. Now the thing is that you just see it: serial number is left alignment and while number is aligned in right. How you see it? Yeah, just see it. This is right alignment. Text is aligned left, middle, right. Cell is alignment top, center and bottom. ये cell है. Now the thing is, मैं इसको थोड़ा सा bigger कर रहा हूँ so that you can understand very easily, very properly. Now the thing is, first we can apply cell. This is the value and I am applying cell. Right, middle, top. Just see top, middle, right. This is the alignment. Clear? Now if I say center, center is aligned but that is a cell alignment. ये cell alignment है. अब आप इसको और देखेंगे तो टेक्स्ट अलाइन करना तो लेफ्ट, सेंटर और राइट. अब सबसे अप्रोप्रिएट है कि आपने टेक्स्ट भी अलाइन कर दिया लेफ्ट, मिडिल, सेंटर जिसको बोल सकते हैं, ये सेंटर अलाइन. एंड ऑल्सो यू कैन अलाइन मिडिल टेक्स्ट. जो सेल आप अलाइन कर रहे हैं वो ये दोनों से करना है. तो अगेन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब इसमें अगर आपको सपोज फॉर्मेटिंग, लास्ट लेक्चर आई हैव अप्लाइड इट, सभी रो और कॉलम की फॉर्मेटिंग रो हाइट कॉमन रखना है. इफ यू कीप कॉमन तो go to format option, go to column width, 8.43 is the common, and go to row height, 19 pixel is the common. But why I have enlarged it? So that you can understand alignment of the thing: top, middle, bottom, left, center, right. This is the alignment of the cell which you can apply. ये आप अप्लाई कर सकते हो. वन मोर थिंग, हाउ यू सी इट अलाइनमेंट. सो अलाइनमेंट, होम ऑप्शन, होम एरो, होम एरो आप अप्लाई करोगे, अलाइनमेंट, ALIGN, होम अलाइनमेंट. अलाइनमेंट के ग्रुप है. दिस ग्रुप इज ऑल्सो यू कैन अप्लाई. नाउ द थिंग इज, ये आपने देख लिया.
अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ही है, यस। वर्टिकल जो होता है वो टॉप बॉटम सेंटर ही, आप वी हैव सीन इट, जस्ट वी हैव सीन इट, हमने अभी देखा। अब आप इसमें और आगे देखेंगे हम, तो अलाइनमेंट हम देख चुके हैं। अब सम ऑफ द थिंग्स वी कैन अप्लाई विथ ओरिएंटेशन। लाइक आपका नेम है, आपको डायरेक्शनल वाइज करना है, रोटेशन करना है। इफ यू वांट टू रोटेट इट, कि आपको रोटेशन करना है, तो रोटेशन करने के लिए आप कोई अलाइनमेंट, और यहाँ आप रोटेशन क्लिक करें, और यहाँ मैंने 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया। जस्ट सी इट, आई हैव रोटेट द थिंग 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया। अगेन आई एम इनलार्जिंग इट, मैंने इनलार्ज कर दिया 45। सपोज आपको 45 थोड़ा सा इट इज अ बिगर कंपैरेटिवली, सो यू कैन 15 इज द सफिशिएंट, सॉरी 15 में भी कुछ ज्यादा हो, सो 45 इज द सफिशिएंट। आप उसमें चाहें तो और 90 डिग्री के आस 90 डिग्री भी ज्यादा हो जाएगा, 75 डिग्री, this is sufficient. Now this is the rotation alignment. How you see it? Just click and see it. Now n number of things are there. अब सपोज आपको ये होम अलाइनमेंट लिखा आपने, दिस विल क्रॉस इट मोर देन वन सेल, तो जो सेलेक्ट इट एंड मर्ज सेल इज द ऑप्शन, मर्ज सेल ऑप्शन दिख रहा है आपको, इट विल मर्ज इट। जस्ट सी इट, एक्सेल आप ऊपर देख रहे हो दो पार्ट में, and here is bottom side one part in Excel. This is a single cell. Now you can say it is a single cell. अब आप में इसको ऐसा थोड़ा सा और बाइफर्केशन करना है, होम और फिर अलाइनमेंट। नाउ दिस ओवरऑल थिंग यू कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, जिसको बोल सकते हैं रैप टेक्स्ट। तो आपने सिंगल सेल ली and apply it wrap text. What is wrap text? It will display all the content visible and display in multiple line if wrap text is on. यदि वो wrap text on होता है तो वो multiple line में display होता है, ये multiple line में display होगा। Something you enlarge it, so this is the best option. You can apply it, Control B bold. So alignment we have seen it, left, center, right, merge, wrap text. Orientation also use it, same thing, clockwise, anti-clockwise, these are the options available it. Yes. Wrap text, merge cell, we can apply it, we have applied it. So wrap text means multiple line. One more thing, wrap text here you apply here, it's the same thing you can apply, and wrap text hata diya, same thing you can apply with alignment and wrap text, the same command you apply it. How? Home, alignment group, and in alignment group one text box is there, text control is there, just enable it. Enable means you just click out, आप click करेंगे और उसको देखेंगे। ये this is the home alignment. Now next is wrap text हो गया, मर्ज, अगेन इनेबल इट, जो wrap text है। मर्जिंग मैंने बता दिया कि मर्ज क्या करता है। हाँ, अब वन मोर थिंग इज देयर, मान लो मैंने आप यहाँ लिखा सीरियल नंबर, I have written serial number. Now serial number is showing in formula bar, but serial number is not showing in that cell. इस cell में go to alignment, just see it. What I do, shrink to fit, it will decrease the font size. Shrink to fit मतलब cell में वो fit हो रहा है, shrink to fit means it will fit the value according to cell.
सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को फिट कर लिया. दैट इज द मीनिंग ऑफ श्रिंक टू फिट. इस चीज को ध्यान रखें आप. डिग्री रोटेशन बताया टेक्स्ट का, रैप टेक्स्ट बताया, मर्ज सेल बताया, श्रिंक टू फिट, है ना. मैं आपको इसका वो भी दे देता हूं कि अलाइनमेंट, रैप टेक्स्ट, मर्ज सेल, फिर आपका रोटेशन, और श्रिंक टू फिट. These are the options we have discussed it right now. ये सारे options हमने discuss करे थे. Again, but you can also apply it in mobile also. मोबाइल में भी कुछ facilities दे रखी है. जो options आपके आ रहे हैं वो insert है, drawing है, same. Page layout as it is तो नहीं display होता है वो, but some of the options are common, we can say. So wrap text, sync to fit, merge cell, changing text color. अब text color को आपको change करना है तो ये भी बता देता हूँ मैं. Again, very easy, it is not difficult. Just click it and font color, you can apply it any font. Like I have used it dark color. So font color or text color, you can directly apply it from here. ये जो है ये text color को show करता है और ये जो text और font color को show करता है. And this is the option is for filling the option. Filling का option बताता है. फीलिंग का ऑप्शन बताता है. आपको ऐसे फील एरिया में फील करना है. तो इट विल फील द सेल, फील द कलर ऑफ सिलेक्टेड सेल, फील द बैकग्राउंड ऑफ सिलेक्टेड सेल. जिस सेल को भी आपको सिलेक्ट करना वो फील कर दे. नेक्स्ट, अब ऑप्शन क्या है, यहां भी है और एंड द सेम ऑप्शन इज ऑल्सो अप्लाई होम एरो फोंट टैब, फॉन्ट सेल. अब इसमें एक और बात है, एक वन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर. सपोज इफ यू आर कंफर्टेबल एंड इफ यू आर फेमिलियर विथ एक्सेल, देन there are n number of shortcuts are also there. Right side I have mentioned it, most of the software, most of the shortcuts I also discussed in previous lectures. But the thing is that if you want to use some of the shortcuts and habitual, you just click on and just see it. Control plus shift plus F, the shortcut is mentioned, just wait it. Yeah, control plus shift plus F, font option will come. Control plus shift plus F, this is the option, font option. Same thing apply. Abhi font option will display. Now there are font, the font is the name of the font. The font style shows there are 4 styles, regular, italic, bold and bold italic. That you know very well. Color you know very well. Size you know very well. Effect, there are 3 effects. Strike out means cut the words, words cut हो जाते. Superscript gives the power, for example x square x cube. Subscript base, base बताता है. So these are the things which you can see it, आप उसको देख सकते हो. So this is the font related activities, we have seen it. Now about formula bar पे हम डिस्कस करते हैं, how to apply it formula. ये ने देखा, just see it. Now apply formula. This is the formula bar and this is the formula option. Now how you can apply it for operation. Operation और ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं? ऑपरेटर. ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड इक्वल्स. डिवाइड in divide sign and equal sign. This is called arithmetic addition, add operator, addition, subtraction,
मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड इक्वल्स। ये नाउ बोथ द थिंग्स हाईलाइटेड, बोल्ड, आप बोल्ड परफॉर्म करो, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वॉट एवर यू हाउ टू परफॉर्म इट। अब कैसे हम परफॉर्म करते हैं, मैं जस्ट आपको ऑपरेशन बता रहा हूँ। सपोज यही सेम सेल है और यहाँ पर वही सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स हैं, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स हैं, और मार्क्स सब्जेक्ट 3। ये again highlighted it, apply border, border always apply it, set column value according to your content, whatever content you have, जो भी content है आपके, again align it center center, that is our requirement. It is a very neat and clean showing it. Now the thing is how you can apply it. अब आप कैसे अप्लाई करोगे सेल को? तो वन मोर थिंग, ऑलवेज यूज इक्वल साइन। जैसे अब आपको इस सेल को प्लस इस सेल को प्लस दिस सेल, ये सम आपको करना है, तो ये एक आपके पास तरीका है। इक्वल ऑपरेटर, यूज इट सम। वन मोर थिंग ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर्मूला। एक और चीज, और इसमें एक और बात है, ये जो आपने लिया सम, ये भी फॉर्मूला कॉपी हुआ, दिस विल कॉपी द फॉर्मूला, ड्रैग एंड ड्रॉप। आई हैव नॉट अप्लाइड दैट फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला ऊपर अप्लाई करा, नीचे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा। आई हैव नॉट रिटन हियर फॉर्मूला हियर, सो यू जस्ट कॉपी इट। तो व्हाट इज इट, कैसे करा, हाउ टू डू इट, जस्ट सी इट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, जस्ट प्लस साइन, ड्रैग एंड ड्रॉप। कोइंसिडेंटली वो ऐसे ही है। अब आपका देखो, इफ यू आर चेंजिंग, ऑटोमेटिकली चेंज द वैल्यू ऑफ योर सेल, वैल्यू चेंज हो जाती है उस सेल की। तो ये हमने देखा, सम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको सबट्रैक्शन करना दो वैल्यूज का, मान लो ये, इसको हम हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, यहां हम ऊपर सम करते हैं। सम का अब मैं अप्लाई का तरीका अलग बताता हूं। इक्वल्स टू सम फंक्शन है, दिस इज द सम फंक्शन, ये सम फंक्शन, ये दोनों ले लिया, सम फंक्शन, ये अप्लाई कर दिया। तो आप फॉर्मूला बार में देखो, यू जस्ट सी इट ऑन फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में क्या लिखा हुआ, इक्वल्स सम, स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल। सो हाउ यू राइट इट, एनी फॉर्मूला, इक्वल साइन, नेम ऑफ द फंक्शन, ये आप इक्वल साइन देख रहे हैं, नेम ऑफ द फंक्शन, स्टार्टिंग रेंज एंड एंडिंग रेंज, ये दोनों चीजें हमने देखी। तो आपका ये कहलाता है सम। और फिर आप अप्लाई करेंगे, यू कैन अप्लाई इट ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अब ऐसे ही अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्शन में मान लो फर्स्ट मार्क्स में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करना, तो आपके पास इक्वल साइन है, फर्स्ट सेल माइनस सेकंड सेल,
एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। सो अब इसमें आप दो चीज सीख रहे हैं यहाँ, हियर यू आर लर्निंग टू थिंग्स। फर्स्ट आपने पहले मैंने बताया तो सब्सट्रैक्शन सीख रहे हो आप, इसमें 98 कर देते हैं और 65 कर देते हैं। तो आप दो चीज क्या सीख रहे हो, एक तो हाउ टू परफॉर्म सब्सट्रैक्शन एंड अनदर वन इज हाउ टू कॉपी द फार्मूला। कॉपी कैसे कर रहे हो आप फार्मूला की। अब ड्रैग एंड ड्रॉप तो मैंने आपको बता दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप से आप कर सकते हो, और भी काफी सारे ऑपरेशन है जिसको आप क्लियर कर सकते हो। जैसे इसमें आपने ये लिया, यहां आपने लिया कॉपी, ये कॉपी करा आपने, और यहां आपने सब जगह क्या करा, पेस्ट, सॉरी पहले इसको कॉपी, कॉपी और हियर पेस्ट, ये पेस्ट। आप सब जगह पेस्ट करना चाहते हैं, इट विल ऑटोमेटिकली अप्लाइड। सपोज आप वो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट परफॉर्मिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ऑटोमेटिकली वो आपको परफॉर्म होती चीजें। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के दो तरीके, प्लस आई हैव एक्सप्लेन इट, माइनस आई हैव एक्सप्लेन इट। माइनस मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये बता दिया, फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये मैंने बता दिया। ऑटो फिल ऑटोमेटिकली में आप यहां से फिलिंग का बता चुका हूं, लेफ्ट राइट, शॉर्टकट भी आपको बताया था, ये लिखा आपने, और सपोज राइट में आपको फिल करना है तो ये फिल सीरीज राइट, ये राइट में आ गया, दिस थिंग वी हैव सीन इट। तो प्लस माइनस प्लस सब्सट्रैक्शन। अब सेल में अगर आपको और भी कुछ परफॉर्म करना है, मान लो आपको कोई कैलकुलेशन ही करना है कि ये जो प्लस है इसमें इसका डिवाइड करना है, सब्सट्रैक्शन जो आया उसका ये लेके और उसमें 5 का मल्टीप्लाई लेके ये और डिवाइड करना है 200 से, ये डिवाइड हो गया। सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज यू कैन परफॉर्म इट, मल्टीप्लाई और डिवाइड यू कैन परफॉर्म इट। तो अब हमने और क्या देखा, फॉर्मूला प्लस माइनस, दिस फॉर्मूला आई हैव अप्लाइड इट, तो दिस फार्मूला आई एम अप्लाइंग एंड आई हैव अप्लाइड दिस फार्मूला। तो प्लस मैंने बताया, इक्वल्स मैंने बताया, इक्वल का यूज भी बताया मैंने, कैसे आप इक्वल का यूज करते हैं और कैसे आप कॉपी पेस्ट करते हैं चीज़ों को, और कैसे आप ओवरऑल एग्जीक्यूशन करते हैं सारी चीज़ों का। तो आप सम भी मैंने बता दिया। अब इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हो। मैंने जैसे सम हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मुझे काउंट करना है कि कितने मार्क्स काउंट है। काउंट है मतलब ये 2 सब्जेक्ट के मार्क्स है, सपोज आई वांट टू काउंट इट, ये तो 2 ही है बट अगेन यू कैन काउंट मोर। तो आप कैसे करेंगे, इक्वल काउंट और ओनली 2 सेल ये, और आप चाहें तो लिख के भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू काउंट, फर्स्ट सेल कौन सी है, दैट फर्स्ट सेल इज I31, सॉरी J31 कॉलन K31, J31 कॉलन K31, ये। और अगेन यू कैन कॉपी इट। वन मोर थिंग, इसको ऑटो सम भी बोला जाता है, अगेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटो सम, है ना। अल्टर प्लस इक्वल्स टू का साइन से आ जाता है, आप इसको देखेंगे तो, जिसे एवरेज निकालना है, अल्टर प्लस इक्वल्स टू, ये सम आया, अब एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकाल सकते हो, ERAGE, एवरेज निकाल सकते हो। M31 की बजाय दिस 2 वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट द एवरेज,
ये एवरेज फाइंड आउट हो गया. अगेन द सेम थिंग यू कैन अप्लाई इट. सो सम सबस्ट्रैक्शन वहां पर नहीं दिया हुआ. दिस इज द वेरी फंडामेंटल और रिसेंटली फंक्शन यूज इट. अब मान लो इन दोनों मार्क्स में वी कैन फाइंड आउट द, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, वी कैन शिफ्ट इट हियर एंड वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू. हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. अब मैक्सिमम के लिए वही, आप ऑटो सम में जाओ, गो टू ऑटो सम, मैक्स. रेंज ये नहीं है, ओनली टू वैल्यूज, दिस एंड दिस, दैट्स ऑल. ये मैक्सिमम. अगेन कॉपी इट, ये कॉपी कर लिया. सपोज आपको याद नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पा रहे, तो गो टू दिस सेल, कॉपी, और फिर यहां दिस वन यू कैन सिलेक्ट इट, पेस्ट ऑप्शन. कंट्रोल वी इज ऑल्सो यूज इट. कंट्रोल वी. देन मिनिमम, मिनिमम भी फाइंड आउट कर सकते हो. मिनिमम कैसे? वही इन दो सेलों के लिए मिनिमम. फर्स्ट टू सिलेक्ट इट, बॉर्डर, मिनिमम. अब आप खुद भी लिख सकते हो, हाउ टू राइट इट, इक्वल्स टू मिनिमम, और सेल वही है, E38 और F38. E38 कॉलन F38, ये लिया, मिनिमम आ गया. अगेन फाइंड आउट इट, ऑल द वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट इट, ड्रैग एंड ड्रॉप. तो दे आर कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शन, ऑल्सो यूज इट. इसको एग्रीगेट फंक्शन भी बोला जाता है, मैथमेटिकल फंक्शन भी बोला जाता है. एंड देयर आर एन नंबर ऑफ फंक्शंस आर डिवाइडेड. आपके अलग अलग फंक्शंस डिवाइडेड हैं. तो ये जो फंक्शंस है ये स्टेटिस्टिकल फंक्शंस हैं, जिसमें एवरेज कैलकुलेट हो रहा है, सम कैलकुलेट हो रहा है, काउंट कैलकुलेट हो रहा है, मैक्सिमम कैलकुलेट हो रहा है, मिनिमम कैलकुलेट हो रहा है ना. ये फंक्शंस. और फंक्शन का सिंटेक्स मैंने अभी बताया. क्या बताया? इक्वल, नेम ऑफ द फंक्शन और रेंज. आई एम राइटिंग हियर इक्वल, नेम ऑफ द फॉर्मूला, नेम ऑफ फॉर्मूला, सेल रेंज. ये इक्वल, नेम ऑफ फार्मूला, सेल रेंज. वो इक्वल लगाया ना, इसलिए वो चाह रहे कि वो फार्मूला होना चाहिए. जब आप इक्वल लगाते हो उसका मीनिंग यही होता है. ये एरर कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एरर. तो अभी तो हम वो खाली हमने कंटेंट लिखे, इसको इक्वल साइन हटा देते हैं. तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल्स, EQUALS, इक्वल्स एंड नेम ऑफ द फार्मूला. तो अब आपको प्रॉपर हो गया. बोल्ड करके मर्ज कर लिया सेल को, मर्ज. ये सो दिस इज द थिंग. अब इसमें जो फार्मूला फंक्शन है वो कैसे हैं? ये जो है ये ऑटोसम का कहलाता है, बिकॉज दिस इज अ साइन ऑफ ऑटोसम. यू नो मैथमेटिक्स, ये आपको पता है, ऑटोसम का साइन होता है. अब सेम फार्मूला जो आपके अप्लाई है कि फार्मूला किस किस टाइप के फंक्शन है, दीज आर द फंक्शन. ये ऑटोसम फंक्शन जो अभी मैंने बताया, आई हैव एक्सप्लेन इट. रिसेंटली यूज्ड का मतलब है जो जो अभी आपने लास्ट में यूज करें. तो दीज आर द फंक्शन आई हैव यूज्ड इट प्रीवियसली. ये मैंने यूज करे थे, उनको बता रहा. रिसेंटली का मतलब यही होता है. आपके मोबाइल में भी अगर आप कोई चीज देखते हैं, टेक्स्ट मैसेज वगैरह, तो रिसेंटली देखते ही आप. फिर फाइनेंशियल फंक्शन, दीज आर द फाइनेंशियल फंक्शन. हमको सारे नहीं करना, यू जस्ट रिमेंबर इट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर गिवन इन एक्सेल. दैट इज कॉल्ड इनबिल्ट फंक्शन. इनबिल्ट फंक्शंस कितने तरह के दिए हुए हैं उसको आपको देखना है. एंड सम ऑफ द लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन जो वैल्यूज होती है, एंड और नॉट, इफ, ट्रू, फॉल्स, दीज आर द लॉजिकल टाइप ऑफ वैल्यू. फिर एक है टेक्स्ट. टेक्स्ट फंक्शन, ये टेक्स्ट फंक्शन है लोअर,
लेंथ, टेक्स्ट की लेंथ फाइंड आउट करना, लोअर मतलब लोअर केस में, अब रिप्लेस में किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना, अपर में कैपिटल लेटर्स में आएंगे. सो दीज आर द टेक्स्ट टाइप फंक्शंस. डेट एंड टाइप फंक्शन, तो डेट एंड टाइप के फंक्शन मतलब डे बताना, डेट बताना है ना, ईयर बताना, ईयर में से क्या है, कौन सा ईयर है. अब सपोज करो आप इक्वल्स टू डेट लिख रहे हैं. अब डेट में जो आपका फॉर्मेट जो लेता है ना इनबिल्ट, ये मेंशन कर रहा है ईयर, मंथ और डे. सपोज ये ईयर है, मंथ और डे. डिस्प्ले किस फॉर्म में आप देखो, द डेट विल डिस्प्ले द डेट विल डिस्प्ले, किस तरह से डिस्प्ले कर रहा है वो, उसी तरह से डिस्प्ले कर रहा है 12/1/2001. और इनपुट जो कर रहा है वो ईयर, मंथ और डे. ठीक है. अब नेक्स्ट ये फंक्शन हमने देखे, मोर फंक्शंस पे आप क्लिक करोगे तो और भी फंक्शंस आएंगे. इक्वल टू ईयर, ईयर में पैरामीटर सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो देखो सीरियल नंबर, ये अब उसकी रेंज है, या आप जब देखोगे तो आपको क्लियर होगा. रिटर्न्स द ईयर ऑफ डेट एन इंटीजर इन द रेंज, इस रेंज में. सीरियल नंबर इज द नंबर इन डेट टाइम कोड यूज बाय एक्सेल. एक्सेल का यूज करा हुआ है 6 7. तो डेट फंक्शन जो परफॉर्म करता है, अच्छा इस डेट फंक्शन और नॉर्मल डेट फंक्शन में डिफरेंस है. सपोज करो यू हैव रिटर्न, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. अब आप बोलोगे एक जैसा दिख रहा है. इन दिस डेट फंक्शन, ये जो मैंने जिस पे सिलेक्ट करा, वट एवर आई हैव सिलेक्टेड इट, इन दिस डेट फंक्शन आई हैव अप्लाइड इट ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशन, लाइक प्लस करना, माइनस करना, मुझे मंथ फाइंड आउट करना है, ईयर फाइंड आउट करना है, तो मैं देख सकता हूँ इस डेट फंक्शन में. ये दे भी रखें, डेट वैल्यू फाइंड आउट करना, टू डेट करना है, ये सब कर सकते हैं. लेकिन इससे मैं इस पर्टिकुलर चीज से, बिकॉज दिस विल ट्रीट इट एज ए टेक्स्ट, ये जो डेट है ये टेक्स्ट जैसे ट्रीट होगी. तो यहां आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखना इस चीज को. तो आपको काफी सारे ऑप्शंस मैंने बताए, और इसमें काफी सारी वैल्यूज भी बताई हैं. एन नंबर ऑफ थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. रैप टेक्स्ट क्या होता है, स्ट्रिंग टू फिट क्या होता है, डेट कैसे अप्लाई करते हैं, फार्मूला फंक्शंस क्या होते हैं, फार्मूला फंक्शंस लिखते हैं हम कैसे हैं. तो दीज आर द बेसिक थिंग्स आई हैव अप्लाइड इट. इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने व्यूज जरूर शेयर करें. एंड if the video is good, then like it and subscribe also channel, so you will get next video automatically, notification will on if you notify it. So these are the things which I have explained in excel, basic excel. previous भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको explain करी, and these are the fundamental basic चीज़ें जो मैंने आपको करी इसके पहले भी. ये shortcuts भी काफ़ी सारे डिस्कस करे थे, डाउन के, फाइंड के. अच्छा, सम ऑफ द शॉर्टकट्स आर वेरी कॉमन, लाइक कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल पी, कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी. सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स. आप कमेंट बॉक्स में लिख दें एंड लाइक इट. एंड इफ एनी क्वेरी अगेन राइट इट ऑन मैसेज ऑल्सो. थैंक यू.